Hello viewers, I am Deepti. I am making this video for students who have just given their class 10 examination. Some of you or your parents have a very clear vision about your future, but a few students have a dilemma about which path to choose. So this video will make your many doubts clear. Whatever stream you are choosing, science, humanities, commerce, you need to give some type of competitive exam after your class 12. So your preparation should start now. So many students got the opportunity because they have two paths. One is very simple with your regular school in the guidance of experienced teachers and obviously with the help of coaching center, and another path going through coaching centers which are affiliated with schools where regular attendance is not compulsory, or you can say that there is a relaxation with your regular attendance. Several coaching centers have tie-up with regular schools to reduce extra pressure on the students. Thus, they have enough time to focus on their entrance exam preparation, whatever entrance exam for JEE, for advanced, for NEET, for CUET, any type of competitive exam, you need time because time management is the basic problem there. For self motivated students, because they have a very clear vision कि हमें क्या करना है, who need solitary environment, this is a better option as they will have more control, because they have more control over their time as well as schedule also. So we can say in a simple language that time management will be easy for these type of students who are opting this coaching center path. On the other side, if you want to enjoy your school life as well as social life, then go with regular school curriculum, because in regular school more experienced teachers will guide you, help you in your holistic development, regular assessment, practical work, a lot of extra activities, school trips, school clubs, etc. will keep you fresh and rejuvenate you from time to time. What I am trying to say is कि अगर आप रेगुलर स्कूल जाके भी अच्छा रैंक ला रहे हो, अगर आपने कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली आपका रैंक हायर चला जाएगा अगर आप कोचिंग सेंटर पढ़ने के इरादे से गए हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वहां भी घूमने जाते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि आपको वहां पर नहीं मिलेगा। ये हम ऑब्स्ट्रक्शन जो रेजिस्टेंस वर्ड पढ़ते हैं ये तो हमारी लाइफ में हर जगह मिलेगा हमें। आप रेगुलर स्कूल में जाएंगे, आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आप कहीं भी अपनी फैमिली में बैठेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, इतना पढ़ के क्या करोगे, इससे क्या मिलेगा। वो तो हमें देखना है कि हमारा ड्रीम कितना बिग है और हमारे जो एफर्ट्स है वो कितने डेडिकेटेड होने चाहिए, ये हमारा डिसीजन है। वैसे भी 75% लाना तो बोर्ड एग्जाम में भी आपके लिए कंपल्सरी। आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां पर भी मिनिमम परसेंटेज तो आपकी ये भी काउंट होगी अगर आप जेईई एग्जाम के लिए देने जा रहे हो तो। और 75 वैसे तो बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है, आप इससे हायर रैंक भी ला सकते हैं। बट स्टिल अगर आप किसी के साथ एफिलेटेड है और वो कोचिंग सेंटर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है, या आप अलग अलग टीचर से भी ले रहे हैं कोचिंग, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टीचर से होम ट्यूशंस भी लेते हैं, जो भी आपको ऑरा सही लगता है अपने होम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आप उसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ रेगुलर कोचिंग सेंटर में जाने वाला ही स्टूडेंट क्रैक कर सकता है, बट हाँ उनकी सक्सेस रेट नॉर्मल रेगुलर स्कूलिंग से तो ज्यादा होगी, ये तो आप भी मान सकते हैं। One of my students who took the regular schooling path went on to get admission in IIT Delhi with a stellar all India rank of 329। तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स रैंक नहीं ला सकते हैं, हम उसको एक रैंक 10 रैंक, क्योंकि यहाँ तो एक एक मार्क्स से फर्क पड़ेगा, आपका परसेंटेज एक एक दो नंबर से नीचे आता जाएगा। तो और अगर आपने डेडिकेटेड एफर्ट किया है तभी आप उसको क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो देते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 8 साल, लेकिन सब तो क्रैक करने के बाद भी वहां पहुंच तो नहीं जाते हैं जहां उनको पहुंचना होता है। My own son has cleared JEE Mains as well as JEE Advanced with a good rank with the help of regular schooling as well as coaching center guidance also. But here coaching center people told us at a very early stage that their effort is only 20%. Rest efforts should be put in only by the student, their family members, and by the atmosphere which we are providing to him.
सो ट्राई टू गेट माई पॉइंट दैट अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे का एम बड़ा है तो उसके लिए हमें भी अपने कुछ एक्टिविटीज रोकनी होंगी। हम डेली घर में पार्टी कर रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, हम जा रहे हैं और फिर हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा रैंक ले आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा करके तो हम उसको डिप्रेशन में डाल देंगे। ट्राई टू गेट माई पॉइंट वट आई वॉन्ट टू से। और अपने बच्चे के कैलिबर को देखिए, अगर आपको लगता है कि वो कर पाएगा तभी उस पर उतना प्रेशर डालिए। कई बार बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं और गलत स्टेप्स उठा लेते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो अपने बच्चे के कैलिबर को पहचानिए। आपका बच्चा साइंस में इंटरेस्ट रखता है तभी उसको साइंस लेने के लिए प्रमोट करें, उसको फोकस करवाएं साइंस की तरफ। लेकिन अगर उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको जबरदस्ती साइंस दिलवाएंगे और उसके बाद उसका रैंक और नीचे आ गया क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका 11th का पूरा जो कैरियर है वो आगे के लिए पूरा कैरियर ही वीक हो जाएगा क्योंकि उसका पिलर स्ट्रांग नहीं होगा। एक पिलर तभी स्ट्रांग होगा जब उसकी बेस मजबूत होगी, और बेस मजबूत कब होगी? जब बच्चा अपनी मर्जी से वो स्ट्रीम चुन रहा है। तो कभी भी अपनी स्ट्रीम बच्चे पे मत डालो, बच्चे से पहले देखो। आजकल बहुत सारे स्कूल्स में तो खुद ही उनके साथ पूरा कैरियर काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि आप इस स्ट्रीम में अच्छे हैं, आप ये चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को कह रही हूँ कि तुम साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, और मेरा बच्चा है ऐसा कि वो किसी के दुख को देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, फिर कल को वो साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा, वो बाकियों की स्टोरी सुन सुन के रोता रहेगा, खुद निराश रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? तो इसलिए कभी भी कैरियर बच्चे के और फैमिली के एटमॉस्फेयर को देखते हुए बच्चों को चूज करने में हेल्प कीजिए। इम्पोज मत कीजिए कि हम यहाँ रहते हैं, अरे हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स में सबने इंजीनियरिंग किया, तुम भी इंजीनियरिंग करो। जब आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा 60% मार्क्स ला रहा है, 70% मार्क्स ला रहा है, तो वो कितना आगे तक जा सकेगा, ये आप खुद भी थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। To make this point more clear, I am sharing 1 or 2 videos with you. मे बी मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे आपको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो मैं उनके द्वारा आपको कुछ बताना सुनाना चाहती हूँ, जो ट्राई टू फोकस ऑन द पॉइंट्स विच दे आर शेयरिंग विद यू, क्योंकि वो तो लाइव इन चीजों को फेस कर रहे हैं इसीलिए। 11 में जाने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है कि वो लोग डमी स्कूल में जाए या रेगुलर स्कूल में जाए। रेगुलर स्कूल का प्रॉब्लम्स बहुत सारा है, जैसे कि आपका स्कूल टाइमिंग्स, सुबह तो पूरा चला जाता है स्कूल जाने में, रात को जल्दी सोना है, नेक्स्ट दिन स्कूल है। वीकली असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सब तो स्कूल में रहता ही है, जो आपका हाफ ऑफ द जे और नीट का टाइम, प्रिपरेशन का टाइम ले लेता है। और डमी स्कूल में क्या है, डमी स्कूल का आपका बहुत सारा टाइम मिलेगा। डमी स्कूल में आप बहुत पढ़ पाओगे। डमी स्कूल का आपका ये वीकली असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, ये सब कोई झंझट नहीं है। 75% अटेंडेंस का झंझट नहीं है, और ये सब डमी स्कूल में बेनिफिट्स है। पर डमी स्कूल का भी कॉन्स है, जैसे कि ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। और डमी स्कूल में जो प्रॉब्लम है, काफ़ी सारा स्टूडेंट्स मिसयूज़ करते हैं इतना टाइम को, जो कि है मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस और गेम, सोशल मीडिया तो है ही, ये सब खेल के वो लोग अपना आधा समय बर्बाद कर देते हैं। एग्ज़ाम चला भी आता है, उन लोग का प्रिपरेशन लेवल 0 में होता है। हाँ, कुछ बच्चे जो बहुत ही सीरियस है, वो उन लोगों के लिए डमी स्कूल इज़ अ वेरी गुड चॉइस। दे कैन एब्सोल्युटली गो फॉर डमी स्कूल एंड दे कैन क्रैक जेईई मेंस एंड एडवांस विद अ हाई रैंक। और जो रेगुलर स्कूल के हैं वो लोग भी डमी जेईई क्रैक कर सकता है। काफ़ी सारे रेगुलर स्कूल, जैसे कि मैं खुद एक रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट हूँ। डमी स्कूल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डमी स्कूल एफिलिएटेड नहीं है। काफ़ी सारे डमी स्कूल एफिलिएटेड नहीं है, जो एक लीगल प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि 75% अटेंडेंस का बिना कोई स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठ नहीं सकता। इस मामले में काफ़ी सारे लोग अभी भी चुप है डमी स्कूल के बारे में। और रेगुलर स्कूल में आप लोग स्कूल जाते जाते, स्कूल आते आते टाइम तो जाता है, पर उस समय भी आप लोग यूटिलाइज करके कुछ रीडिंग, जैसे कि केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। स्कूल में रहते रहते आपका जो कोचिंग का होमवर्क है और असाइनमेंट्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और रेगुलर स्कूल का सिर्फ स्कूल्स का टाइमिंग नहीं, उन लोगों का शाम को ट्यूशन भी रहता है, कोचिंग भी रहता है, जैसे कि 4 घंटे का कोचिंग, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम बस 2 घंटे बच जाता है। 2 घंटे में सेल्फ स्टडी करके आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं। तो रेगुलर स्कूल में हाँ, आपको समय अपने आप निकालना पड़ेगा। स्कूल थोड़ा सा छुट्टी लीजिए, उनको बोल, काफ़ी सारे स्कूल्स हेल्प भी करता है। अगर आप उनको बोलते हैं कि हम लोग आईटी प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग हाँ कुछ मर्सी कर देते हैं। तो डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल ये सब डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर स्टूडेंट बहुत ही मेहनत वाला है तो वो हाँ, उसके लिए डमी स्कूल इज़ द बेस्ट। एंड अगर स्टूडेंट वो को धक्के मार कर करवाना पड़ता है तो रेगुलर स्कूल आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज
एटलीस्ट वहाँ आपको खुद से टाइम निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ये है मेरे डेडलाइन और आपका बोर्ड्स का हैम्पर नहीं हुआ, क्योंकि आप ये एटलीस्ट श्योर है कि रेगुलर स्कूल का जो असाइनमेंट्स और टेस्ट ही आपका बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल अच्छा है। आपका एटलीस्ट बोर्ड्स का मार्क्स नहीं रुकेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो डमी स्कूल में पढ़ते हैं उनका बोर्ड्स मार्क्स भी, जो पढ़ते नहीं है एक्चुअली, उनका बोर्ड्स मार्क्स भी गिर जाता है। As we all know that schools organize a lot of curricular activities, but during the preparation for any competitive exam, focus on studies is must, and for that, schools affiliated with coaching centers is the best option. Competitive exams like JEE and NEET require utmost level of dedication and work, and sometimes students may feel overloaded. They might face difficulties in maintaining a balance between their school studies and JEE or NEET preparation. When students are enrolled in schools and coaching centers at the same time, their schedule gets very hectic. They have to attend both school and coaching classes. This schedule destroys the mental peace of students. So, enrolling in schools affiliated with coaching centers became a boon for the students, which provides a time manageable environment and helps students focus solely on their preparation for competitive exams. One more point I want to lay emphasis on is सिर्फ कोचिंग सेंटर का नाम देख के अपने वार्ड को वहाँ एनरोल मत करवाइए। वहाँ देखिए किस तरह की फैकल्टी है, फैकल्टी कितनी देर तक के लिए वहाँ रहती है। बच्चे के लिए रोज नए नए टीचर्स को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ टीचर्स स्टेबल नहीं हैं, चेंज होते रहते हैं, तो बच्चे को बहुत डिफिकल्टी होती है। और दूसरा, कई बार हम सोचते हैं कि घर के बाहर रहकर बहुत अच्छा करेगा स्टूडेंट, जैसे कोटा फैक्ट्री, आपने सुना ही हुआ है कि हम अपने स्टूडेंट को कोटा भेज देंगे, भाई कोटा से करके ही निकलेगा। क्या आपने देखा है कोटा में क्या हो रहा है? क्या आपने देखा है वहाँ कोचिंग सेंटर्स के क्या हाल है? क्या आपको पता है कि सक्सेस रेट वहीं पर जाकर ज्यादा होगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं 1 साल ड्रॉप करने के बाद, 2 साल ड्रॉप करने के बाद। तो पहले स्टार्टिंग फेज में उसको थोड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए, आप खुद साथ जाइए, आप देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार रैगिंग वर्ड तो यूज नहीं करूंगी, कई बार बुली करते हैं बाकी स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को बुली करते हैं। कई तरह के एटमॉस्फेयर अलग अलग आपके बच्चे को मिल सकते हैं वहां जाके, जिसके लिए वो तैयार नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स तो बहुत मैच्योर होते हैं, वो हर तरह के प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा आपके बच्चे को कौन पहचान पाएगा? Many a times some regular schools are providing very experienced and skilled teacher to your ward. सो उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी भी गाइडेंस लीजिए। कई बार वो टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट का कहना है कि उसकी केमिस्ट्री टीचर इतनी अच्छी हैं कि उनको कभी कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कहाँ हमें अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी पूरा एक ही सब्जेक्ट सारी जगह मिल रहा है, या अलग अलग सब्जेक्ट टीचर हमारे घर आके होम ट्यूशन दे रहे हैं। आपको खुद चूज करना है, रास्ता आपको ही चूज करना है। हम सिर्फ बता सकते हैं, तो आपको रास्ता के बारे में अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो समझा सकते हैं, बट उसके बाद भी फाइनल पाथ तो आपको ही चूज करना है, क्योंकि आपके बच्चे का कैरियर का सवाल है, तो आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम मैं तो लूंगा, मैं तो इस बार पूरा साइंस लेने के मन में हूँ, ये है वो है, पूरी प्लानिंग हो गई है, लेकिन अगले दिन आके एकदम से चेंज माइंड। क्या हुआ है? नहीं मैं तो कॉमर्स में जा रहा हूँ, मेरे से इतना टफ कंपटीशन हैंडल नहीं होगा और मुझे कॉमर्स में जाना है, और कॉमर्स में भी विदाउट मैथ्स भी लेने को तैयार हूँ। सिर्फ हमारे बोलने का फर्क नहीं होगा, इस समय पीयर ग्रुप का बहुत इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो अपने पीयर ग्रुप की बात भी जानते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड जा रहा है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे भी इसको ज्वाइन करना है, बट पहले आप देखिए क्या वो कोचिंग सेंटर आपके बच्चे के लिए ठीक है, क्या वहां जाकर वो डेडिकेटेड स्टडी कर रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनके पीछे हम जाकर पूरा स्पाई का काम करेंगे कि हाँ देखेंगे कि हाँ सच्ची में वो क्या कर रहा है, बट उसके आउटपुट आपको कुछ ही मंथली टेस्ट से पता चल जाएगी कि किस तरह के टेस्ट वो वहां पर दे रहा है, कितनी पॉजिटिव आउटपुट आपको मिल रही है वहां से। So now choice is yours. If you are a totally devoted, dedicated aspirant of any of the competitive exams, or you may say that self-determined to complete your goal, to complete your dream, then you can opt for these schools affiliated with coaching centers. This may be a best option for you, क्योंकि आपको पता है अगर आप अलग भी पढ़ोगे, आइसोलेटेड माहौल में भी पढ़ोगे, आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे, लेकिन हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। उसको पढ़ाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम फोन पे गेम खेल रहे हो, अभी तक तुम्हारा यही चल रहा है, चैट ही चल रही है। तो थोड़ा सा आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट, अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा। ये इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए। Otherwise, there are so many streams which I have already discussed in my another video. Just check which one is suited to you according to your goal,
and caliber and then go ahead. पहले सोच लो फिर करो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो स्ट्रीम चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बाद में जाकर रियलाइज होता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मैंने फिर ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड और ये सब चीजें की है, क्योंकि मेरा पढ़ाना शुरू से ही एम था, मुझे पढ़ाई की तरफ ही आना था। लेकिन बस जहां पर हम रहते थे वहां पर जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली हमने पहले वो ग्रैस्प कर ली। अब मुझे फैक्ट्री जॉब नहीं करनी है, मुझे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना जहां मुझे सुबह से लेकर रात तक टाइम डिवोट करना है। आई वांट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू माय फैमिली अफेयर्स, कि मुझे उनके साथ रहकर कोई जॉब करनी है, तो मैं टीचिंग लाइन में आ गई। अब यही मेरे साथ, ये एक मेरी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। मेरी कितनों से बात होती है, उसमें से 90% लोग वही हैं, बनना कुछ और था, बन कुछ और गए। ये टाइम है, अभी सोचो कि हमने क्या बनना है, उसका रास्ता अभी से निकाल लो, खोज के निकाल लो कि अगर मुझे यहाँ जाना है, अगर मुझे पायलट ही बनना है, कमर्शियल पायलट ही बनना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे बैचलर की डिग्री लेनी है एविएशन में। अगर मुझे सीयूईटी क्लियर करना है तो मुझे यहाँ जाना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मुझे ये रास्ता पकड़ना है, मुझे अगर बीएससी एमएससी भी करनी है तो भी मुझे इस रास्ते से करनी है, मुझे इस ऑनर्स में करनी है। तो अगर हमें गोल पहले से पता होगा तो हमारा रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.